Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello friends, welcome to Testbook Banking. So it's time to discuss financial समाचार जिसको हम लोग नॉर्मली लाइव सेशन के अंदर कवर करते हैं, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस वी आर गोइंग टू कवर दीज थिंग्स टुडे इन अ रिकॉर्डेड मैनर. बट विल कवर ऑल द न्यूज़ जो हमें आज डिस्कस करनी थी. विल स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़. द फर्स्ट न्यूज़ रिगार्डिंग ECG फंड्स बिकम द पॉपुलर इन इंडिया. नाउ दिस इज द न्यू टाइप ऑफ फंड्स जिसके अंदर लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं. दे आर जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड्स, बट नाउ डेज दे आर बिकमिंग वेरी फेमस इन इंडिया. मल्टीपल म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस or the managers, they are coming with the ESG funds. Now exactly what is the ESG, what are these ESG funds, we'll discuss about that, but first we'll see some factual data जिसके भरोसे न्यूज़ क्रिएट हुई है. Now ICICI Prudential Mutual Fund, which is one of the biggest mutual fund of India, they announced that they are going to introduce the ESG mutual funds or ESG funds जिसे हम लोग कहते हैं. Now in India, the first ESG mutual fund was started by SBI. SBI Magnum Equity ESG Fund, they have started it and it becomes so famous that everyone in India wants to invest their money into ESG fund. Now exactly what is the meaning of ESG? Now E stands for environment, S stands for social, and G stands for governance. So what is the meaning exactly? So people wants to invest into such companies, those companies who are aware about the environmental scenario, are they doing very good in the environmental front. Socially, they are handling all social responsibilities and their governance is top notch. So only in these institutions, only in those companies, people wants to invest their money or people wants to invest to the mutual funds, either equity or the debt, doesn't matter, but they want to invest into those companies having the ESG scenario, that is environmental, social and the governance angle. Normally in mutual fund, what normally happens when we invest into mutual fund, we'll talk about the potential earnings कितनी होगी, मैनेजमेंट कैसे रहेगा, कैश फ्लो किस तरीके से आएगा, बिजनेस किस तरीके से ऑपरेट होता है, कंपटीशन कैसे होती है. बट पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ इन टू invest into such kind of ways. They are kind of evolved and they are talking about, they are shortlisting the companies depending on environmental score, environment में कैसे है, social responsibility कैसे handle की जा रही है और उनका corporate governance कैसा है. Now if people are investing into in such kind of ways, that means people are aware, investors are very much aware about their responsibility, about their scenario. So normally एक statement बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत statement mention किया गया था that ESG funds and other mutual funds, what is the difference? Difference is conscience. So what's your conscience is? What morally is right? What should be there and where should be your money, or in which scenario your money should be invested? In that angle, people are investing their money. So more ethical, more environment friendly, more moral based institutions, and people are investing into such kind of scenario. Now like any other mutual fund, like any other fund, it is also regulated by SEBI. SEBI isko regulate karegi, so nothing different in that angle. But there is United Nations, they mention one thing, principle for responsible investment, and Indians are now following this suit, that responsible investment. Another thing, look, if you are investing into such company whose corporate governance is top notch, okay, who is doing the social responsibility and also having the environmental angle, that company or that institution will be definitely will be having the more better future than any other company. And that's why future angle में अगर बात की जाए तो ये funds आपको बहुत ज़्यादा returns दे सकते हैं. तो ESG funds, they are working wonderfully in India. If you people even wants to invest into mutual funds, go for such kind of funds, because these funds will give you a very good returns in a future, and these are the long lasting funds, because the companies like tobacco industries की बात करें, they are not doing good, because they are might be profitable but they are creating 6 million annual deaths. Okay, yes, because cancers होते हैं और tobacco का आपको पता है. So these the funds belong to tobacco companies, or if your money is going to tobacco companies, so those funds are not called as a ESG fund. इसको हम लोग ESG fund नहीं कहेंगे, because यहाँ पे companies are not doing the good job. But those companies, they are aware about such stuffs, so people wants to invest into such kind of scenario. It's a good awareness, it's a good change of investors mindset in India also. So बाहर कंट्री में तो बहुत चलता था, UK US के अंदर these things are working amazingly. Now it started in India also, so यहाँ पे भी याद रखना, ये भी हमारे लिए काफी मैटर करेगा. So ESG fund is a new thing which imports for the exam point of view. Now in exams, what kind of questions they will ask? First, the question will be regarding full form, short form. Next,
म्यूचुअल फंड और इसमें क्या डिफरेंस है, मैंने कहा था कंसाइंस इज द ओनली डिफरेंस, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी एज इट इज. हु इज गोइंग टू रेगुलेट? SEBI is regulating this. The first company who introduced this in India is SBI. देन ICICI प्रूडेंशियल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है. एंड दिस यूनाइटेड नेशंस प्रिंसिपल फॉर रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट इज अनदर फैक्टर जिसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. तो फाइनेंशियल एंगल में ये न्यूज हमारे लिए काफी ज्यादा मैटर करती है. बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आएंगे और बहुत सारी न्यूज इसके ऊपर इन फ्यूचर बनने वाली है. आगे बढ़ते हैं. नाउ क्लिक्स कैपिटल में सीक इंडेमनिटी फ्रॉम द एलवीबीज ड्यूज. नाउ लास्ट टाइम आई मेंशन यू दैट लक्ष्मी विलास बैंक के ऊपर हमने बात की थी. द बैंक इज फेसिंग अ ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस. नाउ क्लिक्स कैपिटल is a Indian capital company, okay, is a North India based capital company. They wants to invest their money into LVBs. So LVB is trying, Lakshmi Vilas Bank is trying one agreement with them, okay. But while doing this agreement, Clicks is mentioning about what are the dues the LVB is having. So those dues should not be with the Clicks capital. A fresh agreement should be there. But now the problem is that if अगर ये agreement fail होता है तो RBI ask PNB, मैं आपको एक न्यूज दिखा देता हूं कि बाद में हम लोग वापस जाते हैं. देखिए, दे आस्क PNB अगर ये क्लिक्स का और LVB का, लक्ष्मी विलास बैंक का अगर डील प्रॉपरली हैंडल नहीं होता है तो उन्होंने PNB को बोल दिया है दैट यू कैन टेक ओवर द बैंक. आप बैंक को टेक ओवर कर सकते हैं. इसका मतलब है LVB, लक्ष्मी विलास बैंक, ऑफिशियली PNB के अंदर मर्ज हो सकता है इन कमिंग फ्यूचर अगर ये डील प्रॉपरली आगे नहीं बढ़ती. ना लक्ष्मी विलास बैंक का प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुआ? इन 2019 लक्ष्मी विलास बैंक के ऊपर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इंप्लीमेंट किया गया था बाय द आरबीआई. ना नॉर्मली आरबीआई मेंशन अर्लियर शक्तिकांता दास साहब के अंडर कि हम प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन किसी के ऊपर नहीं लगाएंगे. बट लक्ष्मी विलास बैंक की हालत बहुत खराब थी. उनका एनपीए काफी बढ़ गया था कि उनकी क्वालिटी, उनका सीआरआर काफी कम हो गया था. और अगर बात की जाए तो उनका प्रॉफिट मार्जिन था वो भी काफी डेंजरस तरीके से लो हो गया था. तो ऐसे कंडीशन में प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता. एंड दे इंप्लीमेंटेड द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन. After that, they tried to do one deal with India Bulls. India Bulls हाउसिंग के साथ मर्जर की बात की थी लक्ष्मी विलास बैंक ने, पर आरबीआई ने वो प्लान रिजेक्ट कर दिया बिकॉज इंडिया बुल्स के भी जो अकाउंट्स थे वो उतने स्ट्रांग नहीं दिख रहे थे. From year 2020, they started a new tie-up with the Clicks. But this problem started of the COVID-19 and because of that इसको थोड़ा 15th of September तक रोक के रखा था. But now it's high time. Now they have to take the decision. मीनवाइल जितने भी शेयर होल्डर्स है उन सारे शेयर होल्डर्स ने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स है एज वेल एज जो प्रमोटर है उनको रिजेक्ट कर दिया, उनको नेग्लेक्ट कर दिया कि ये लोग इस बैंक को हैंडल करने के लिए नहीं चाहिए, ये लोग इसके मर्जर के लिए नहीं चाहिए. तो शेयर होल्डर्स को हमें सराखों पे रखना पड़ता है. एंड वी डिसाइडेड नॉट टू गिव द बैटन इन देयर हैंड. एंड दैट्स व्हाई आरबीआई अपॉइंटेड अ 3-member कमिटी कि ये लोग अभी हैंडल करेंगे. डायरेक्टर्स की कमिटी है और उनको काम करने के लिए दे दिया. बट नाउ द क्वेश्चन इज दैट कमेटी है, काम हैंडल करेगी, बट हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा. और क्लिक्स कैपिटल के पास सॉल्यूशन है कि वो काम कर सकते हैं. बट अगेन द प्रॉब्लम इज दैट क्लिक्स की अपनी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है. दे आर सेइंग कि ओल्ड ड्यूज हम लोग हैंडल नहीं करेंगे, ये हैंडल नहीं करेंगे, वो हैंडल नहीं करेंगे. तो ऐसे कंडीशन में लक्ष्मी विलास बैंक अगर क्लिक्स के साथ मर्ज नहीं हो पाई या उनका अगर मर्जर प्रॉपरली नहीं हुआ तो इसको बंद करने की जगह पीएनबी विल बी द सेकंड ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ द लक्ष्मी विलास बैंक. और जो आरबीआई ने देके रखा है. सो आरबीआई आस्क पब्लिक सेक्टर बैंक दैट इज पीएनबी टू take over this bank if the merger will be failed, and that is the most important scenario. Now अगर हम फाइनेंस की बात करें लक्ष्मी विलास बैंक के तो बहुत वर्सनिंग फाइनेंस है. देखिए, अगर एनआईआई की बात करें दैट इज नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो 427.7 करोड़ के आसपास उनका नेट इंटरेस्ट इनकम जा रहा है. अदर इनकम की बात करें जो बाकी किसी और वे से या और इन्वेस्टमेंट से आपके पास आ सकता है वो 351.3 है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो -15.5 इज देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो और वर्स हो चुका है 19 के एंगल में. प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज की बात करें तो दे हैव मेंटेन इट, बट वो भी रिड्यूस हो चुकी है जो प्रोविजनिंग करके रखनी पड़ती है फॉर द सेफर साइड, फॉर द रिस्क मैनेजमेंट के. नाउ पीबीटी की बात करते हैं. पीबीटी स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट बिफोर टैक्स. प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज अगेन इन निगेटिव एंड द ह्यूज निगेटिव -1,000 करोड़ 162. लास्ट ईयर से थोड़ा कम है, कोई बात नहीं, बट स्टिल इट इज इन निगेटिव. द नेट प्रॉफिट अगेन इट इज इन निगेटिव -836. लास्ट ईयर से थोड़ा सा यहाँ पे सिनारियो सही है. ग्रॉस एनपीए इज इंक्रीज्ड.
इट इंक्रीज्ड अ लॉट, 25.4% ग्रॉस एनपीए बढ़ गया। टोटल डिपॉजिट्स कम हो गए, बट ऑब्वियसली ऐसी कंडीशन में लोग डिपॉजिट विड्रॉ करते हैं, बट स्टिल हैविंग अ बेटर मैनेजमेंट ऑन द डिपॉजिट एंड एडवांसेस ऑब्वियसली लेस है, बिकॉज पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन चल रहा था, तो वो टाइम पे आप लोन भी नहीं दे पाते, तो यहाँ पे एडवांसेस भी कम है। बट एनीवेज ओवरऑल अगर बात की जाए तो फाइनेंसेस की हालत बड़ी खराब है, तो ऐसे कंडीशन में किसी का सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्लिक इज रेडी टू इन्वेस्ट बट हैविंग सम कंडीशंस। अब वो कंडीशंस पूरी कर सकते कि नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और आरबीआई को फ्रैंकली लगता है, बिकॉज आरबीआई के जो डायरेक्टर की कमेटी है उनका ये कहना है आरबीआई को कि शायद ये मर्जर ना हो पाए, तो ऐसे कंडीशन में वी शुड हैव द प्लान नंबर 2, वी शुड हैव द प्लान बी एंड विच इज पीएनबी। ये पॉइंट याद रखना, यहां पे काफी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बड़ी सिंपल न्यूज है, ईपीएफओ की न्यूज है। ईपीएफओ ने अपनी जो नई फैसिलिटी है उसको उमंग ऐप के अंदर डाल दिया है। उमंग ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है के विच इज गोइंग गिविंग द ऑल स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, उसके सारे बेनिफिट्स आपको इस ऐप के थ्रू ही मिल सकते हैं। द ऐप इज एक्चुअली कॉल्ड एज यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये उमंग ऐप का फुल फॉर्म है कि अब ईपीएफओ ने क्या किया है, ध्यान देते। ईपीएफओ ने एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम to apply online for the scheme certificate. Now there is a employee pension scheme नाम के कंसेप्ट होता है, ईपीएस जिसे हम लोग कहते हैं कि सो उसका जो भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए वो ऑनलाइन तरीके से मिलेगा, आपको फिजिकल फॉर्म में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज अ सिनेरियो। नाउ जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम होती है उसका सीन क्या है कि यू कैन हैव द ईपीएफओ अकाउंट ऑन आफ्टर द एज ऑफ 58 आप इस पेंशन स्कीम का फायदा ले सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद आपको यहाँ पे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब सीन क्या होता है, if some employee any kind of organized employee, चाहे गवर्नमेंट रहे या प्राइवेट रहे, अगर इफ ही विड्रॉ फ्रॉम द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, अगर उसने विड्रॉ कर लिया है, कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है, बिकॉज जॉब नहीं तो कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है, या ऐसी जगह जॉब कर रहे हैं जहां पे ईपीएफओ के अंदर पैसा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप कंट्रीब्यूशन भले ही ना दे रहे, पर आपका जो पहले का कंट्रीब्यूशन था के और आपको जो पेंशन बेनिफिट चाहिए था, अगर आपको चाहिए तो यू कैन गेट द सर्टिफिकेट। पर उसके लिए पहले फिजिकल फॉर्म में अप्लाई करने की जरूरत पड़ती थी, अभी कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। उमंग ऐप के थ्रू आपको सारी की सारी बेनिफिट्स मिलेगी। तो जो भी आपका रिटायरमेंट एज का जो आपको बेनिफिट्स मिलना है वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। सो व्हाट आर द सर्विसेज, what are the new things are added into this, you will get all the benefits through online application only. You don't required to go for this physical form. Even अगर उस पर्सन की डेथ होती है तो फैमिली मेंबर्स को भी जो ऑनलाइन पेंशन या ऑनलाइन पेंशन के प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ेगी वो भी आप उमंग ऐप के थ्रू कर सकते हो। एनीवेज एवरी एम्प्लॉय अंडर द ईपीएफओ दे आर गेटिंग द यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ताकि आप कितना भी जॉब चेंज करें वो अकाउंट नंबर आपका सेम रहेगा, उसके थ्रू आप हैंडल कर सकते हो। और यहां पे भी जो आपको सर्टिफिकेशन के लिए या आपको स्कीम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तो आप कुछ नहीं, उसी मोबाइल नंबर का यूज कीजिए, उसके थ्रू ही आप अंदर एंटर कर सकते हो। दैट इज अ पॉइंट आई मेंशन। मैंने कहा था कि फिजिकल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अननेसेसरली पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ट्रांसपेरेंसी भी काफी अच्छे से यहां पे मेंटेन हो सकती है ना। ईपीएफओ का पर्पस इस करंट टाइम में बहुत बड़ा रहा है। ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को पैसा प्रोवाइड किया गया, जिसकी वजह से जो उनके प्रॉब्लम्स हो रहे थे, जो प्रॉब्लम मनी लिक्विडिटी के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो गए। दूसरा, आप घर बैठे क्लेम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सो घर पे बैठ के काफी क्लेम्स को सेटल भी किया गया है ईपीएफओ की तरफ से, और फॉर दैट पर्पस दे यूज दिस उमंग ऐप विच इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्टफ। Now, उमंग ऐप की बात करते हैं, इट वॉज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD। याद रखना, यहां पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते, डिजिटल इंडिया का बहुत बड़ा ये एक योजना थी, डिजिटल इंडिया के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, एंड वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल स्कीम के ई गवर्नेंस। मैं हमेशा कहता हूं कि मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, उसी एंगल में इसको लॉन्च किया गया था। तो चाहे गवर्नमेंट की कोई भी योजना रहे, ईपीएफओ, आधार, पेंशन, ई पाठशाला, लैंड records, damn everything you can get through this particular app and which is mentioned by government of India। के तो याद रखना, ये हमारे लिए काफी ज्यादा मैटर करेगा, यहां पे काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज नॉट एक्चुअली द न्यूज बट द इवेंट विच इज गोइंग ऑन इन इंडिया। Okay, the event is regarding monetary policy committee because next month जो अभी कल से अक्टूबर स्टार्ट हो रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी आना है इस पहले वीक के अंदर, पर वो अभी नहीं आ पाएगी, थोड़ा सा डिले होगा, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग ये 29, 30 और 1 अक्टूबर को रखा गया था। पर प्रॉब्लम है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर जो मेंबर्स बैठते हैं उनका टेन्योर खत्म हो गया। सो 22 सितंबर को उनका टेन्योर खत्म हो गया। जो आरबीआई की तरफ से आते हैं वो तो रहेंगे, बिकॉज
आरबीआई गवर्नर एंड आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर्स दे विल बी एज इट इज, देयर इज नो इशू। बट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को की तरफ से आते थे 3 लोग के, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो रिप्रेजेंट करते थे, दैट इज पम्मी दुआ के, रविंद्र ढोलकिया एंड चेतन घाटे, इनका 4 साल का टेन्योर खत्म हो गया। अगर इनका टेन्योर खत्म हो गया तो ऑब्वियसली उनकी जगह पे किसी और को रिक्रूट करना पड़ेगा। रिक्रूटिंग के लिए सर्च कमेटी बनाई गई है। सर्च कमेटी इज हेडेड बाय राजीव गौबा। राजीव गौबा जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी है, वो उस सर्च कमेटी को हेड कर रहे हैं। उस कमेटी के अंदर उर्जित पटेल साहब भी है, जो हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, तो वो भी उस कमेटी के अंदर है। बट अनफॉर्चुनेटली कमेटी ने अभी तक किसी को अपॉइंट नहीं किया था। 22 सितंबर को ये लोग रिटायर होने वाले थे। हमें पता था कि ये लोग ऑफिस लेफ्ट कर देंगे। उसके पहले अगर हमने किसी को अपॉइंट कर लिया होता तो शायद चीजें प्रॉपरली हो जाती और 29, 30 और 1 अक्टूबर का मीटिंग भी प्रॉपरली होता। बट टिल दिस डे वी डोंट हैव एनीवन। नाउ गौबा साहब का कहना है कि हमने शॉर्टलिस्ट करके रखा हुआ है एंड वी विल अनाउंस द नेम। शायद आज कल के अंदर नाम अनाउंस हो जाएंगे और नई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनेगी, और बनते ही उनको मीटिंग रखना पड़ेगा, बिकॉज हमें मॉनेटरी पॉलिसी एज सुन एज पॉसिबल देनी पड़ती है और 2 महीने के गैप से आती है, एंड दैट विल बी द रिक्वायरमेंट। तो याद रखना। नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आरबीआई टू इनिशिएट पॉजिटिव पे सिस्टम फ्रॉम द चेक अबव 50,000 फ्रॉम द जैन 2021। नो, पॉजिटिव पे सिस्टम क्या होती है, ध्यान दीजिए। सपोज मैं किसी को चेक दे रहा हूं के, तो मैं जिसको मैंने चेक दिया उसका चेक नंबर, उसका नाम के, कौन से बैंक के थ्रू पे होगा, सारी इंफॉर्मेशन मैं अपने बैंक को डिजिटली इन्फॉर्म कर दूंगा। जब वो चेक क्लियर करने के लिए आएगा तो बैंक विल क्रॉस चेक द इंफॉर्मेशन एंड देन दे विल क्लियर द चेक के। सीटीएस हमारे पास था, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, जिसमें ऑनलाइन तरीके से सारे काम होते हैं, जिसमें चेक के इमेजेस आते हैं के, तो वहां पे फ्रॉड ना हो, फॉर दैट पर्पस वी स्टार्टेड दिस सिस्टम कॉल्ड पॉजिटिव पे सिस्टम। आईसीआईसीआई बैंक या इवन समटाइम्स एसबीआई, समटाइम्स एचडीएफसी, these banks are already following this positive pay system on their own level, and RBI liked this system and RBI said कि ओके हम सारे बैंकों के लिए इसको इंप्लीमेंट करते हैं। पर RBI का ये कहना है कि इनिशियल स्टेज में हम लोग किसी को मैंडेटरी नहीं कहेंगे। 50,000 के ऊपर का अगर है तो बैंक्स कैन आस्क फॉर दैट, के बैंक उसके लिए मांग सकती है, बट विल नॉट डू मैंडेटरी। बट 5 लाख के ऊपर के अगर ट्रांजेक्शन है तो उसके लिए मैंडेटरी करते हैं कि अभी उस एंगल में हम लोग मैंडेटरी करेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे। सबसे पहले चेक की बात जब करते हैं तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंदर ये आता है, और जो भी चेंजेस करेंगे ये इन्हीं के एक्ट के अंदर किए जाएंगे, ये भी आपको समझना पड़ेगा। चेक ट्रंकेशन सिस्टम है जिसमें हम इमेजेस, चेक के इमेजेस हम नॉर्मल यूज करते हैं, ये आपको अच्छे से पता होगा। नाउ ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया हुआ सिस्टम है के, और ये पॉजिटिव पे भी उन्हीं को डेवलप करना पड़ेगा, बिकॉज डिजिटली वी आर गोइंग टू गिव द इंफॉर्मेशन टू द बैंक्स, सो पेमेंट्स बियॉन्ड 50,000 वाले चेक के लिए। नाउ हाउ दिस सिस्टम विल वर्क, फर्स्ट विल टॉक अबाउट दैट। Under the positive pay system, the issuer of the check will be required to submit certain minimum details of the check like date, name of the beneficiary, payee, amount, the drawee, bank electronically। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड करनी है, आपको फिजिकल फॉर्म में जाके प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पॉइंट याद रखना। देन बैंक्स विल क्रॉस चेक द इंफॉर्मेशन, इफ दे फील एवरीथिंग इज गुड देन चेक विल बी इशूड, इफ दे फील समथिंग इज रॉन्ग दे कैन they can raise the red flag, means the payment can be stopped under this criteria, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। Now check under positive pay system will be only accepted under dispute resolution mechanism at the CTS grids। So dispute resolution mechanism रहेगा जिसके थ्रू ही वो फिर आगे बढ़ेगा और सारी चीजें हो सकती है। तो SMS के थ्रू के इन द ब्रांचेस में इंफॉर्मेशन जाएगी, ATMs के थ्रू भी आपको इंफॉर्मेशन प्रॉपरली अवेयरनेस इसके बारे में दिया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। सो एवरीवन हैंडलिंग द चेक बुक, उनको सबको मेल भेजेंगे, उनको SMS अलर्ट्स भेजेंगे, या उनको जब भी वो ब्रांच में आते हैं तो उनको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि एग्जैक्टली इसको कैसे हैंडल करते हैं। अनदर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, यहां पे भी काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। पॉजिटिव पे याद रखना, पॉजिटिव पे का मतलब है कि भाई कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए, कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए, एंड फॉर दैट रीजन वी हैव स्टार्टेड दिस सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। सिंगापुर पिप्स मॉरिशस टू इमर्ज एज द नंबर 2 इन द FPI रेस। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट जो नॉर्मली शेयर मार्केट्स में या किसी कंपनीज के डेट में या इक्विटीज में आते हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को हम लोग नॉर्मली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। नो, एफडीआई की बात करें, एफडीआई ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और एफडीआई के मामले में सिंगापुर सबसे टॉप में जा रही है। नाउ सिंगापुर से कम हमें 4.67 बिलियन का हमें एफडीआई मिला हुआ है।
सेकंड नंबर पे मॉरिशस है जिससे हमें 8.24 बिलियन का एफडीआई मिलता है, और थर्ड पे आता है यूएसए। पर जब एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो अंडर फॉरेन पोर्टफोलियो सबसे टॉप में यूएस आता है, 11.11 ट्रिलियन के आसपास का हमें एफपीआई ये यूएस से मिला हुआ है। सिंगापुर सेकंड रैंक पे आ गया 3.46 एंड देन मॉरिशस 3.41, तो काफी कम मार्जिन है, बट अभी रिसेंटली सिंगापुर ने उनको टेक ओवर कर लिया, सिंगापुर सेकंड रैंक पे इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। नाउ इन कंट्रीज से सिंगापुर मॉरिशस से इन्वेस्टमेंट क्यों आता है? बिकॉज द टैक्स ट्रीटीज, बिकॉज द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद दिस countries are beneficial for the investors, so they are investing the money into India. Moreover, FPI is coming from the equity route. You can see इक्विटी में ज्यादा आ रहा है, कि डेट के अंदर कंपैरेटिवली कम आता है, पर डेट के अंदर सिंगापुर से काफी ज्यादा पैमाने में आ रहा है। मॉरिशस, और अगर मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस से काफी कम पैमाने में या कम सिनारियो पे ये हमारे कंट्री में इन द फॉर्म ऑफ डेट आता है, मोस्टली इक्विटी के अंडर आ रहा है, तो ये भी पॉइंट याद रखना। नाउ एसेट अंडर कस्टडी, ये कंसेप्ट होता है। एसेट अंडर कस्टडी का मतलब है कि जिस किसी के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दे आर गोइंग टू हैंडल द कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दोज फंड्स। तो दोज हु आर इन्वेस्टिंग इनटू इंडियन मार्केट, वो कहां इन्वेस्ट करने हैं, किस तरीके से इन्वेस्ट करने हैं, कब इन्वेस्टमेंट डालना है, कब निकालना है, ये एसेट अंडर कस्टडी के अंडर आता है, जिसको हम लोग एसेट अंडर एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। दो चीजें होती है, एसेट अंडर मैनेजमेंट एंड एसेट अंडर एडमिनिस्ट्रेशन। एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर होगा तो कोई नहीं, आप जिसका पैसा है वो खुद डिसाइड कर सकता है, बस वो किसी के थ्रू काम करवाएगा, बट दे विल डिसाइड। एसेट अंडर एडमिनिस्ट्रेशन अगर होगा तो आपको कुछ भी डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग विल बी मैनेज, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय द फंड बेयरर और द फंड मैनेजर, दे आर गोइंग टू हैंडल एवरीथिंग। तो ये दो डीप चीज होती है, एसेट अंडर एडमिनिस्ट्रेशन, एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो याद रखना, यहां पे एसेट अंडर एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसेट अंडर कस्टडी, जहां पे द फंड मैनेजर विल बी रेस्पॉन्सिबल टू हैंडल ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कहां करने कहां नहीं करने, ये भी आपके लिए बहुत मैटर करेगा। आगे बढ़ते, उस दिन हमने वोडाफोन टैक्सेशन का केस देखा था, जो आर्बिट्रेशन कोर्ट के पास गया था, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के पास गया था। एक और केस बहुत जल्दी बनेगा, अभी बना नहीं है पर बनने वाला है, बिकॉज केन 1.4 बिलियन इन रेट्रो टैक्स डिमांड लॉसेस। नाउ केन इज बेसिकली यूके बेस्ड कंपनी, के वेदांता ग्रुप का ये कंपनी है, वेदांता ग्रुप ने इसको टेक ओवर किया था, दे इन्वेस्टेड इनटू इंडिया। नाउ उनके ऊपर भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का इशू चल रहा है, और 1.4 बिलियन, दैट इज नियर अबाउट 10,000 crore rupees, more than that much amount of money they want from the government of India due to retrospective tax demands. Now दे आर आस्किंग कि हम भी कोर्ट में जाते हैं और हम भी पैसा मांगेंगे। नाउ ये न्यूज ओवर द पीरियड और डेवलप होगी, ये न्यूज के ऊपर अभी हमें और डिस्कस करना पड़ेगा, बट अभी बस याद रखना कि द वोडाफोन का जो कॉन्सिक्वेंसेस था वो बहुत जल्दी हमें फेस करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंह कि हम अपने रूल्स चेंज नहीं करेंगे, भले कोई भी आर्बिट्रेशन कोर्ट कुछ भी बताए। कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसलिए स्टिक हो रही है अपने स्टैंड पे, बिकॉज अदर कंपनीज कैन इजीली आस्क अबाउट देयर मनी, जैसे वोडाफोन को उनको पैसा या वोडाफोन का पैसा हमें रोकना पड़ेगा इन द सेम मैनर। के चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कॉन्क्रीट न्यूज है, यहां पे क्वेश्चन आएंगे। एचडीएफसी लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट वेयरहाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप। नो, वेयरहाउस इज द प्लेस जहां पे हम लोग नॉर्मली एग्रीकल्चर का सारा सामान स्टोर करते हैं। के जो वेयरहाउस के ओनर जो होते हैं, दे कैन गेट द मनी, दे कैन गेट द लोन बाय गिविंग द वेयरहाउस रिसिप्ट्स। वेयरहाउस रिसिप्ट्स को सिक्योरिटी रख के उसके बदले लोन मिल सकता है। तो जो भी सामान वेयरहाउस में रखा गया वो आपकी कस्टडी में जाएगा, वो एज अ सिक्योरिटी वर्क करेगा। तो जैसे से आप लोन क्लियर करोगे, ये अमाउंट या ये सामान जो है ये बाहर निकल सकता है। तो इस तरीके से नॉर्मली फाइनेंस वर्क करता है वेयरहाउस के केस में, कमोडिटीज के केस में। सो कमोडिटीज को इस तरीके से हम लोग डील कर सकते हैं। तो उसी कमोडिटी मार्केट के लिए, उसी वेयरहाउस कमोडिटी मार्केट के लिए एचडीएफसी पहली बैंक है इंडिया की जिसने ये ऐप शुरू किया है। नाउ एमएसएमई सेक्टर की अगर बात करें, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उस सेक्टर में सबसे अच्छा अगर कोई बैंक वर्क कर रहा है तो एचडीएफसी है, बिकॉज उस सेक्टर में काफी ज्यादा लिक्विडिटी एचडीएफसी ने बांटी हुई है, और दिस टाइम एग्रीकल्चर सेक्टर इज देयर। ओके, अब देखते हैं इसके बारे में। देखिए, दिस विल ब्रिंग द इंप्रूव्ड एफिशिएंसी एंड द टाइम सेविंग्स फॉर द एग्री वैल्यू चेन। कि इसका बेनिफिट नॉर्मली प्रोसेसर को होगा, ट्रेडर्स को होगा, एंड समटाइम्स जो बड़े फार्मर होते हैं इनको भी होने वाला है। वेयरहाउस रिसिप्ट लोन्स जिसे हम लोग कहते हैं, इस कैटेगरी में वर्क करेगा। मैंने कहा था वेयरहाउस के बदले आप लोन ले सकते हो, तो जितनी कमोडिटी आपके पास है उस वेयरहाउस के अंदर, वो एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास जा सकती है। देखिए, द एग्जिस्टिंग एंड द न्यू कस्टमर ऑफ द बैंक हु अवेल वेयरहाउस रिसिप्ट
commodity pledge loan from the HDFC bank will be offered this app either warehouse receipt. Suppose for example किसी फार्मर ने मेरे वेयरहाउस में रखा है के, तो ऑब्वियसली वो मुझे पैसे देगा वहां पे रखने के लिए के, या किसी और ने रखा तो उसके लिए पैसे मिलेंगे, तो वेयरहाउस रिसिप्ट के, क्योंकि वो रिसिप्ट पे लिखा रहता है कि आपको इतना इतना पैसा मिलने वाला है, तो उसको गिरवी रख के भी आप लोन ले सकते हो, बिकॉज पैसा आपको कुछ दिनों बाद मिलेगा, एंड इफ यू रिक्वायर मनी नाउ तो यू कैन कीप एज अ कोलैटरल एंड यू कैन गेट द मनी। के सेम विद द कमोडिटी, जो आपके यहां पे रखा गया है उस कमोडिटी को भी आप प्लेज कर सकते हो, उसके बदले भी आपको पैसा मिल सकता है। ठीक है, now existing customer who have already been sanctioned loan can avail this by logging into the app. Okay, and in case of new customer they can get the pledge of loan sanction of HDFC bank and register for the app. तो पहले आप अपना लोन प्लेज करवा दीजिए, okay, then you can register into this. Okay, अब देखिए particularly useful for the customers of the Punjab, Haryana, Rajasthan, Tamil Nadu among the others as the state has strong agri industry. यहाँ पे agri industry strong है because यहाँ का agriculture का chain, value chain भी बहुत strong है, तो इनको काफी फायदा होगा because liquidity की requirement होती है और वो liquidity यहाँ से manage की जा सकती है। वेयर हाउसेस क्या है देखते हैं, इज अ बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग गुड्स by ensuring steady supply of goods to the market. It helps in maintaining price stability in uncertain economic environment. मैंने कहा था वेयर हाउस जहां पे हम लोग फूड को स्टोर करेंगे, गुड्स को स्टोर करेंगे, और जब प्रॉपर सप्लाई कम होगा तो इनका यूज करेंगे हम लोग ताकि सप्लाई को प्रॉपरली मेंटेन किया जा सके। फार्म बिल ऑलरेडी न्यूज में चल रहा है। वेयर हाउसिंग फाइनेंसिंग देखिए, वेयर हाउस फाइनेंसिंग इज द लाइफ ब्लड of the business as banks are capable of sanctioning loan against these commodities that are so stored safely. मैंने पहले भी कहा था जो कमोडिटी आपने रखी है उसके बदले लोन मिल सकता है, तो ये लाइफ ब्लड है बिकॉज काफी लिक्विडिटी इससे चर्न हो सकती है, बन सकती है। देखो ये सामान बाहर नहीं आएगा जब तक सर्टन कंडीशंस पूरी नहीं होती, अब तब तक इसको रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और फॉर दैट रीजन यू कैन गेट द फाइनेंस प्रॉपरली। सिमिलरली व्हेन द लोन इज रीपेड द प्लेज कमोडिटी विल बी रिलीज digitally and this help in timely deliver the goods and timely consumption of the agri processing, so in that way things will work. So सब कुछ ऑनलाइन तरीके से होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है, और ऑनलाइन और फिजिकल फॉर्म में वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ बिग न्यूज, हरुण इंडिया नाम का एक इंस्टीट्यूशन है, दे गिव द डेटा दैट रिच पीपल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग लॉकडाउन स्पेशली। पता चला कि मुकेश अंबानी साहब ही अर्न अ लॉट ड्यूरिंग लॉकडाउन। राइट नाउ हिज अर्निंग जिस स्पीड से आ रही है 90 करोड़ पर आवर वो अर्न करते, वो इनकम अर्न कर रहे इंडिया के अंदर 90 करोड़ पर आवर। अगर मैं बात करूं तो नियर अबाउट 1.5 करोड़ पर मिनट is the earning speed of मुकेश अंबानी। He is the top most, एशिया के टॉप मोस्ट, नो डाउट अबाउट दैट। सेकंड रैंक पे, डिस्टेंट सेकंड रैंक पे हिंदुजा ब्रदर्स आते हैं के, इंडसइंड बैंक जिनकी है, गल्फ ऑयल जिनका है, फिर शिव नडार साहब आते हैं एंड हिज फैमिली के। सो एचसीएल की बात करेंगे, उनकी बेटी फिलहाल एचसीएल को हैंडल कर रही है। देन गौतम अदानी एंड द फैमिली के, ये आपके फोर्थ रैंक पे आएंगे, एंड फिफ्थ रैंक पे अजीज प्रेम जी है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए हिंदुजा ब्रदर्स एंड द अजीम प्रेम जी की बात करेंगे तो इनका इनकम थोड़ा सा कम हुआ है, बट द अंबानी फैमिली स्पेशली मुकेश अंबानी साहब और बाकी इनके इनकम्स ओवर द पीरियड इस लॉकडाउन में बढ़े हैं। कि अभी इस रिपोर्ट का यह कहना है कि नियर अबाउट 1000 करोड़ से ज्यादा जिनके पास वेल्थ है राइट नाउ इंडिया में, ऐसे 828 फैमिलीज और इंडिविजुअल्स है इंडिया में, 828 जिनके पास 1000 करोड़ से ज्यादा इनकम है आज की डेट में, जिनके पास पैसा है 828। और लॉकडाउन के अंदर नियर अबाउट 162 नए लोग ऐड हुए हैं, तो टोटल 128 है, पर 162 ये लॉकडाउन के बाद ऐड हुए। तो सोच सकते हैं लॉकडाउन में काफी लोगों ने पैसा, ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा अर्न किया है। ठीक है, नाउ बात अगर करें तो 5% आउट ऑफ दिस, ये जो मैंने 828 का है उसमें से 5% ये फीमेल बिजनेसमैन है, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स है 5% के। नाउ स्मिता क्रिज्मा फ्रॉम द गोदरेज इंडस्ट्रीज, शी इज एट द टॉप एट द वुमन। उसके बाद है किरण मुजुमदार शॉ जो सेकंड नंबर पे आती है, ये भी पॉइंट याद रखना, ये भी हमारे लिए काफी मैटर करेगा। ओके, सो फैमिलीज एंड द वेल्थ एंड द वेल्दी फैमिलीज ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो 1000 करोड़ से ज्यादा वाले 828 हमारे पास है, तो ये हमारे लिए काफी मैटर करेगा। तो भाई रईसों की बात करनी पड़ेगी, फाइनली इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की बात है, सो यस इट मैटर्स अ लॉट। ओके गाइज, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। ओके, मुझे आपके साथ पेपर का भी डिस्कशन करना था, पर जब हम लाइव में आएंगे देन विल टॉक अबाउट द न्यूज जो बिजनेस स्टैंडर्ड द हिंदू के अंदर आती है, वो भी हम आपके साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।